بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اجاز۔ عالم اسلام کے معروف اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ لاہور آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر قائدین نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دینی، علمی درپیش چیلنجز اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا جماعت سے وابستہ فلاحی تنظیمیں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جامعہ مسجد منصورہ میں دورہ تفسیر القرآن کی شرکاء سے بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا جماعت اسلامی اللہ کے نظام اور قرآن مجید کے نفاذ کا جو کام کر رہی ہے وہ لائق تحسین ہے کہ جو پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز انڈیا کے وہاں میں جا چکا ہوں، اور یو کے آپ کے جتنے ہیں اور جتنے دیگر ممالک میں ہیں، کئی ممالک میں سفر کیا ہوں، لیکن پاکستان میں الحمدللہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز پہلے بار آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ میرا پاکستان کا دورہ اور ہوئیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اور جو تعلقات ہے اور جو کوپریشن ہے اور جو بھی ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو بھی ہم کر سکے، جو بھی فیلڈ میں اسلام کے دعوتی میدان میں یا اسلام کو پھیلانے میں جو بھی ہم اس کا تعاون کر سکے وہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور ہمارا مقصد ہے ہر مسلمان کا کہ ہم دین کے پیغام، اللہ کے پیغام کو دنیا بھر تک پھیلائے، جتنے بھی زبانوں میں پھیلا سکے، جتنے بھی تعداد میں۔ یہ ہمارا فرض ہے، لوگ مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کا پیغام، اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پھیلائے، اور الحمدللہ جو جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے اس میدان میں، جو اللہ کا پیغام خصوصاً قرآن مجید کو سارے دنیا کے انسانوں میں پھیلانے کے لیے، وہ ایک ماشاءاللہ عظیم کام ہے، اور الحمدللہ اسی لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے، اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارا کوپریشن دے۔ وآخرت دعوانا الحمد رب العالمین۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ، شکریہ۔ وفاقی ٹیکس محتسب کی 25 سالہ خدمات کے سلسلے میں گورنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں نظام انصاف کی آخری نمبروں پر ہے، یہاں ایک مقدمے میں پوری ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ان حالات میں وفاقی ٹیکس محتسب کا نظام اس خلا کو احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ یہ نہایت خوش آئند بات ہے کہ ڈاکٹر آصف محمود نے میاں والی اور سکھر جیسے علاقوں میں بھی دفاتر قائم کیے۔ گورنر پنجاب نے ایف ٹی او کے فیصلے کی توثیق کے حوالے سے صدر آصف علی زرداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا صدر مملکت نے انصاف کی فوری فراہمی کے لیے ایف ٹی او کے ادارے کو مستحکم کیا کہ سمپل انہیں اگر کسی نے واٹس ایپ میسیج کیا اور ایک سمپل درخواست واٹس ایپ کر دی تو انہوں نے اس پہ بھی جو ہے وہ سٹینڈ لیا اور اس پہ بھی جو ہے وہ ایکشن لیا اور اس کو سنا اور اس پہ فیصلہ کیا۔ یہ بہت ایک عظیم بات ہے، بہت عظیم کارنامہ ہے، اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ 22 سال میں جو جتنے ٹیکس کے کیسز کا فیصلہ ہوا ہے انہوں نے 3 سال میں اس سے زیادہ کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یقیناً جن لوگوں کو جن کو توقع نہیں تھی، جیسے وہ آپ نے ایک یہاں پہ دکھایا کہ ان پہ وہ تو بیچارہ اچھا کر رہے تھے کہ ہاسپٹلس کے لیے مشینری لا رہے تھے، آگے ہمارا نظام جو ہے انہوں نے کہا کہ جن سے ٹیکس لینا ہوتا ہے وہ تو نہیں دیتے، تو ان کو تو زیادہ دبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ باہر سے کوئی اگر اچھا کام ملک کے لیے کر رہا ہے تو ان کو رگڑا لگانا سب سے ضروری ہے۔ تو آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا، ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ماہانہ اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اب تک صرف عمران خان اور ان کی اہلیہ کے کھانے پینے پر 1 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ بشرا بی بی کے جیل میں آنے کے بعد اخراجات میں مزید اضافہ ہو گیا، جو کہ ماہانہ 6 لاکھ سے بڑھ کر 8 لاکھ روپے جا پہنچا۔ جیل میں کھانے پینے کے لیے اخراجات کی ادائیگی ان کی فیملی کی جانب سے کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ارمغان کی سہولت کاری پولیس اہلکار کی جانب سے کی گئی اور مذکورہ اہلکار گزری تھانے میں تعینات ہے۔ پولیس اہلکار کا ارمغان کے ساتھ کال ڈیٹا ریکارڈ بھی ملا ہے۔ ملزم ارمغان نے مصطفیٰ سے قبل ایک لڑکی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ لڑکی پر تشدد سے متعلق ارمغان کے خلاف کارروائی نہ کرنے میں بھی پولیس اہلکار ملوث تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ اہلکار کی انکوائری کے لیے ایس پی کو کہا ہے، جس کے مکمل ہونے کے بعد اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
मिंचनाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलियासी डकैत गैंग के 4 खतरनाक मुलजिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 8 मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, 4 अदद पिस्टल और राइफल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। लाहौर में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिवीजन्स के एसपी ने शिरकत की। बोर्ड में कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखाधही के 42 मुकदमा ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकीन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। अफसरान ने दोनों फरीकीन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक अहकामात जारी किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतअद्दिद थानों के अफसरान को सरजनीश और शोकॉज नोटिस भी जारी किए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हदायत पर लेस्को एससी जमशेद जमान ने समनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लेस्को सार्फिन ने शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौका पर एससी जमशेद जमान का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आज चीफ साहब की हदायत पे ओपन कचहरी जो है समनाबाद डिवीज़न में थी, तो इस सिलसिले में हम आए हुए थे। अभी जो टाइम था 11 बजे से 1 बजे तक हमने ओपन कचहरी की है। इसमें जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स आई हैं वो इंस्टॉलमेंट की थी और मीटर रिप्लेसमेंट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीटर तो अथॉरिटी ने सारे दे दिए हैं, तो जो बैच यूज़र है उसके साथ हम तमाम मीटर चेंज कर रहे हैं। जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं इसमें जो ज़्यादा 4-5 कंप्लेंट्स हमें जो रिसीव हुई हैं वो सैदपुर सब डिवीज़न की थी। तो एसटीओ साहब भी अवेलेबल थे, मौके पे हदायत दे दी हैं, इंशाल्लाह इनके मीटर जो है टॉप प्रायोरिटी पे चेंज करेंगे। बिजली चोर देखें कौम के मुजरम हैं। रेंजर्स जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और लेस्को चीफ साहब की मेहरबानी से हमें रेंजर्स भी अवेलेबल है। हम जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो नोटोरियस बिजली चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन भी जारी है, अरेस्ट भी करवा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा खतरा हुआ, रिसीट भी कम हुई है। बिजली चोर जो हैं वो मोस्टली भाग गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हम कंफर्टेबल हैं। इस वक्त बड़ा इजीली ये एक्टिविटी जारी है। तो जो भी बिजली चोर होगा उसको हमने तो छोड़ना नहीं है। रेंजर्स के आने से हमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से रिसीट कंट्रोल होगी और बिजली चोरी में खतरा कमी होगी। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल के हमरा ओकावाला रोड के किनारे पौधे लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर सीईओ जिला कौंसल साहिवाल खुदादाद तारड़, एक्सियर रिजवान मारत, सब इंजीनियर आमिर वड़ैच और दीगर भी मौजूद थे। इस मुहिम के तहत ओकावाला रोड के किनारे अब तक 4500 पौधे लगाए जा चुके हैं और मजीद 2000 पौधे भी लगाए जाएंगे। जंग पुलिस डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेरे क़यादत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। जंग पुलिस की रवामार कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान गुल। जंग पुलिस के मुताबिक रवा माह फरवरी में कानून शिकन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजा में जंग पुलिस ने मुअस्सर नताइज हासिल किए। रवा माह फरवरी में 120 इश्तिहारी मुजरमान जबकि 43 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। 103 मंशियात फरोश जबकि 67 नाजायज असला बरदार गिरफ्तार किए गए और मंशियात फरोशों के कब्जा से 13 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन जबकि 22 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद की। 1481 लीटर शराब के साथ साथ 361 लीटर लहन और शराब कशीद करने वाली 3 चालू भट्टियां बरामद की गईं। इसके साथ साथ नाजायज असला बरदारों के कब्जा से भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया। इस मौका पर डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना था कि क्रिमिनल गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस अज़्म हिम्मत के साथ मैदान अमल में बरसरे पेकार है। किसी भी किस्म की कानून शिकनी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंग का अमन और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कुव्वत के साथ किया जाएगा। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। जेहलम जीटी रोड जाफर माल के करीब कार और शाहजोर में तसादुम का वाकया पेश आया, जिसमें 5 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने फौरी एक्शन लेते हुए गाड़ी में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करके DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा कार की ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मेव हस्पताल लाहौर हाई कोर्ट आमिद। इस मौका पर DIG सिक्योरिटी लीगल अवैस अहमद, DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान और सीनियर पुलिस अफसरान भी IG पंजाब के हमरा थे। IG पंजाब ने अस्पताल में ज़ेर इलाज शहरी और अहल खाना से मुलाकात की और इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत की। दौरा हाई कोर्ट के दौरान IG पंजाब ने जाए वकूआ का मुआयना किया और सिक्योरिटी और चेकिंग मैकेनिज्म मज़ीद सख्त करने का हुक्म भी जारी किया। वज़ीर तवानाई के अहकामात की रोशनी में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस मौका पर एक्सीएस जफर सोलंकी का कहना था, अगर कोई भी शख्स बिजली चोरी में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी अदारा बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से टंडोजाम खटियान स्टेशन रोड पर मौजूद ईंटों के भट्टों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था, भट्टों के जहरीले धुएं से सांस, जल्द और दीगर अमराज फैल रहे हैं, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने आला हुकाम और असिस्टेंट कमिश्नर से भट्टों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। पीछे धुआं निकल रहा है, कितनी ज़ोर से धुआं निकल रहा है। ये हमारे गांव है सर मोहम्मद रईस और यूसुफ रईस, दिन में तमाम ज़्यादा धुआं गिर रहा है। वहाँ बिल्कुल उनके घर के सामने भट्ठा लगाया गया है। तो हमने अफगानी पठानों को मना किया कि यहाँ पे भट्ठा नहीं लगाओ, लेकिन वो धमकियाँ दे रहे हैं। क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं जो बार बार हमें तंग कर रहे हैं। हमारे रोड रास्ते सारे ख़त्म कर दिए हैं, ये CC ब्लॉक वगैरह तोड़ दिया है। इसलिए हम अपील करते हैं आला इदारों से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, IG सिंध, DC और हमारे नुमाइंदे जो पीपल्स पार्टी के हैं, शर्जील इनाम मेमन, साईं तारक हुसैन शाह जामोद साहब से, तो कि फिलफौर नोटिस लिया जाए इस मामले का, नहीं तो यहाँ कोई खूनी मसला हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए। बार बार ये धमकियाँ दे रहे हैं, तो हमें इन भट्टों से जान छुड़ानी चाहिए। और बीमारियाँ इस कदर फैल गई हैं कि दमे की तकलीफ, एलर्जी, खारिश और बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं जब से ये भट्ठा चालू हुआ है। तो मेहरबानी करके ये अफगानी पठानों का भट्ठा बंद किया जाए। कसूर में डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर तलबा को पतंगबाजी की रोकथाम और सफाई के हवाले से आगाही लेक्चर्स दिए और तलबा को पतंगबाजी की मुकम्मल रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना था, पतंगबाजी एक खतरनाक और जानलेवा खेल है जिसका हम सब ने मिलकर खात्मा करना है। डिप्टी कमिश्नर ने दौरा स्कूल के मौका पर अमले की हाजिरी, इनरोलमेंट और तदरीस के अमल समेत दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। जिला बहावल नगर की तहसील मिंचना आबाद भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में DCO बहावल नगर जुल्फिकार भून, MNA मियाँ अब्दुल गफ्फार वट्टू, MPA मियाँ फिदा हुसैन वट्टू और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी मोहम्मद इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचना आबाद बॉयज़ हाई स्कूल में, जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में, जहाँ पर आज पंजाब सुथरा के जो विज़न का सिलसिला वो जारी है। इफ्तिताह भी कुछ ही देर के बाद होने जा रहा है, जहाँ पर DCO बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचना आबाद यहाँ पर पंजाब सुथरा का इफ्तिताह भी करेंगे और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का जो पंजाब सुथरा के अहकामात हैं उसके बारे में मैसेज भी देना चाहेंगे। मज़ीद यहाँ पर जो ओहदेदारान हैं, आला अफसरान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है पंजाब सुथरा के हवाले से। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर आजम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो मरियम नवाज साहिबा का सुथरा पंजाब के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का दिन तहसील मिंचनाबाद के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि यहाँ पे सुथरा पंजाब की दाग बेल डाली गई और इसी सिलसिले में आपने सुन लिया होगा कि 400 वर्कर्स, 115 गाड़ियाँ, डिजिटल मॉनिटरिंग हम लोगों ने मुतारिफ कराई है बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट ने। और इसी सिलसिले को लेते हुए मैं तहसील मिंचनाबाद के वासियों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना घर, अपनी दुकान, अपनी गली साफ रखें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। शुक्रिया जी। जैसा कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर आजम साहब की बात सुन रहे थे, जिनका कहना है कि तहसील मिंचनाबाद को मरियम नवाज साहिबा के अहकामात की रोशनी में साफ सुथरा बनाने के लिए 406 जो वर्कर हैं और मशीनरी जो हो है 415 के करीब तकरीबन वो मशीनरी है। और उनका ये भी मैसेज था कि तहसील मिंचना आबाद के अवामुल नास को मैसेज है कि वो अपना टाइम टेबल बनाए, एक ही वक्त में अपना कूड़ा जो है वो बाहर फेंके ताकि वो उठाकर साफ सुथरा मिंचना आबाद को बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचना आबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर में ओड़ो यूनिवर्सिटी का दौरा करके बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया।
वज़ीर आला सिंध की आमद पर वाइस चांसलर ओरो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जाहिद खंड ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध के हमरा MNA खुर्शीद अहमद शाह, स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवाइस कादिर, सूबाई वज़ीर सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने अपने दौरे के दौरान बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी और मोमी म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध को ओरो यूनिवर्सिटी में AI फैशन डिज़ाइन और मौसमियाती साइंस समेत 14 मज़ामीन डिग्री प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।